So today we will start with the double fertilization in angiosperms. In the yesterday's lecture, I just gave you the chart of double fertilization. Now, the under the topic of double fertilization, we have to study the different events which took place after pollination. That is, when the pollen grains are deposited on the stigma, the first process will be germination of the pollen grains. During that process, the pollen grains absorb uh, the nutrient material and water which are present on the stigma, and the pollen tube is formed. This pollen tube will contain two male gametes and a double nucleus, right? That is called as the basal nucleus actually. पोलन ट्यूब में जो other nucleus होता है that is called as the tube nucleus. So pollen tube will contain two male gametes and the tube nucleus. This pollen tube grows towards the ovary. Now this growth is directed by the chemicals which are secreted by the synergids which are present in the embryo sac. Now, with the under the guidance of those chemicals, the pollen tube will reach or it will rupture the ovary. It will go towards the ovules. Again, it will rupture the ovule and it will enter inside the embryo sac. ये enter कहाँ पर करती है? At the site of synergids, यानी जहाँ पर एग apparatus होता है उस साइड से ये pierce करती है. It will pierce one of the synergids and absorb whatever material which is present in the synergid, and because of that absorption the pollen tube will swell, and due to excessive swelling the pollen tube bursts open. When it bursts, all the two male gametes and the tube nucleus, they will be uh, deposited inside the embryo sac. Now from these two male gametes, one of the male gamete will fertilize the egg cell and the other male gamete will fertilize the polar nuclei. In this way, the fertilization will happen two times, and that is why this process is called as double fertilization. Double fertilization is observed in all angiospermic plants. ठीक है, सारे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमको दिखाई देता है. Now, when the male gamete fuses with the egg cell, female egg, then the zygote is formed. This zygote will give rise to embryo. And जो second fertilization होता है, in which the another male gamete fuses with the polar nuclei, it will form a primary endosperm nucleus or primary endospermic nucleus. Now this primary endospermic nucleus further divides and it forms the endosperm. Now endosperm is necessary for the nutrition of the embryo. That is the जैसे हम लोगों में होता है ना ह्यूमंस में कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पेरेंट्स करके रखते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी जो एम्ब्रियो होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, तो वो जो एम्ब्रियो है उसके नरिशमेंट के लिए पहले से ही ये करके रखते हैं. मतलब एक कुछ तो साइड में एक होता है ना उस तरीके से करके रखते हैं. दैट इज द एंडोस्पर्म व्हिच विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द growing embryo. So all these events come under the process of double fertilization. अभी डिटेल में क्या है ये हम एक बार फिर से इसको देखते हैं. अगर कुछ मिस आउट हो गया है, मिस आउट यानी जो पोलन ट्यूब एंटर होती है वो डिफरेंट साइड से एंटर हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सिर्फ इसमें बताना बाकी है, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है. The double fertilization is a complex fertilization mechanism in flowering plants. यानी all angiosperms का meaning तो पता होगा ना आपको. Angiosperms यानी the plants which show flowers. Flowering plants जो होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते ही नहीं है, डायरेक्टली सीड प्रोडक्शन हो जाता है, राइट? तो वो अंडर एंजियोस्पर्म्स नहीं आते हैं.
So flowering plants are the angiospermic plants. ये 11th का टॉपिक है. Now, this process, that is the double fertilization, was discovered by the scientist Nabashin in the Liliaceae plants. So, Liliacus is a family, Liliaceae family है. उस family में जो plants आते हैं, उन plants में सबसे पहले double fertilization का process study किया. उसमें से example दिया है आपको यहाँ पर Lilium and Fritillaria. आफ्टर अ पोलन ग्रेन हैज रीच्ड द सरफेस. सो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है या पहली स्टेप क्या है? द पोलन ग्रेन्स रीच द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा. These pollen grains germinate and form a pollen tube. Now this pollen tube penetrates the stigma, style, ovary chamber and then it enters the ovule. यहाँ पर हमको उसका रूट समझ में आएगा. यहाँ पर पोलन ग्रेन्स स्टिक होते हैं, यहाँ पर वो जर्मिनेट होंगे. आफ्टर जर्मिनेशन पोलन ट्यूब जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से इस स्टाइल से नीचे नीचे आती जाती है. नाउ दिस इज कमिंग थ्रू द स्टाइल. स्टाइल के बाद वो रप्चर करेगी यहाँ पर ओवरी को. ओवरी के बाद वो रप्चर करेगी यहाँ पर ओव्यूल को एंड देन इट एंटर्स द एम्ब्रियो साइट. सो दिस इज द पाथवे ऑफ द पोलन ट्यूब. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? The growth of pollen tube is guided by the chemicals which are secreted by the synergids. तो यहाँ पर जो synergids होते हैं, ये synergids कुछ chemicals secrete करते हैं. Those chemicals are responsible for the guidance of this pollen tube towards the ovule or egg apparatus. The pollen tube usually enters the ovule through the micropyle. It is termed as porogamy. नाउ यहाँ पर आते हैं तीन डिफरेंट मेथड्स की पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होगी इनसाइड द ओव्यूल. इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. समझ में आ रहा है? Yes. In some cases it is found that the pollen tube will enter or it enters through the chalazal end, then it is called as chalazogamy. Chalaza कहाँ पर होता है? It is exactly opposite to this part. माइक्रोपाइल के exactly opposite होता है. करेक्ट ना? Yes. सी यहाँ पर है माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के अपोजिट यहाँ पर होता है चैलेजा. राइट. अंदर जो ब्राउन दिख रहा है दैट इज द एम्ब्रियो सैक. हम लोग मतलब पोलन ट्यूब अभी तक एम्ब्रियो सैक तक आई नहीं है. ठीक है. सो दीज आर द टू एंड्स ओव्यूल के. एक होता है माइक्रोपाइलर एंड एंड यहाँ पर है चैलेजल एंड. अगर वो चैलेजल एंड से एंटर करती है यानी यहाँ से जाके ऊपर जाके देन इट एंटर्स द ओव्यूल, देन दैट विल बी कॉल्ड एज चैलेजोगैमी. ठीक है. नाउ इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, द पोलन ट्यूब विल पियर्स. ये जो दो यहाँ पर इंटेगमेंट्स होते हैं ना उनको पियर्स करती है. देन इट विल बी कॉल्ड एज मीजोगैमी. यानी दिस इज द रूट बाय विच इट विल एंटर इनसाइड द ओवल बट टिल दैट टाइम इट हैज नॉट पियर्स द एम्ब्रियो सैक. वो अब तक एम्ब्रियो सैक के अंदर पियर्स नहीं कर चुकी है. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. एक मिनट, यहाँ पर एक डायग्राम है शायद. हाँ सी यहाँ पर फर्स्ट जो ए है उसमें क्या बताया है, ये डायग्राम क्या हमको बता रही है एक्चुअली. it is showing that the pollen tube, if the pollen tube enters through the micropyle, then it is called as porogamy. If the pollen tube enters through the chalazal end, ठीक है ना, यहाँ पर chalaza होता है, this part is called as chalaza which lies opposite to the micropyle, then it will be called as chalazogamy. And if the pollen tube pierces both these integments either from this side or from this side, any side, then it will be called as mesogamy. So these are the three different types by which the pollen tube reaches the ovule. यहाँ तक क्लियर है? नाउ जब यहाँ तक आता है इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है पोलन ट्यूब विल पियर्स द एम्ब्रियो सैक. नाउ पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. यानी ये जो
एम्ब्रियो सैक है यहाँ पर, इसका ये जो एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड. सो ओरोगैमी हो, चैलेजोगैमी हो या मीजोगैमी हो, किसी भी केस में पोलन ट्यूब always pierces or enters inside the this embryo sac through the micropylar end only. क्लियर है? समझ में आ रहा है? yes, पक्का समझ में आ रहा है? यहाँ पर 3 डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, केस कौन सी भी हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक को पियर्स पोलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड ही करती है. ठीक है, ये बात हमेशा पक्का ध्यान में रखना है. Finally, it penetrates the embryo sac of the ovule through the micropylar end. So the pollen tube, which is carrying the male gametes, penetrates inside one of the synergids. तो अंदर आने के बाद क्या होगा, ये जो भी पोलन ट्यूब है वो एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करती है, उसमें जो भी कंटेंट होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है. The watery contents of the synergids are absorbed by the pollen tube, which then ruptures and releases the contents, including the 2 non-motile male gametes. So, water content synergid का absorb करने के बाद pollen tube swell हो जाएगी. जैसे बलून में अगर लिमिट से ज्यादा हम पानी या एयर भरेंगे तो अपने आप ही वो फूट जाता है बाद में. सेम कंडीशन होती है पोलन ट्यूब की. ये वाटरी कंटेंट सिनर्जिड का एब्सॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब स्वेल हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बर्स्ट ओपन. बर्स्ट होती है, रप्चर होती है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. एंड जब वो रप्चर होगी तो उसमें जो भी मेल गैमेट्स होते हैं विच आर ऑलरेडी जो नॉन मोटाइल है वो मेल गैमेट्स एंड द ट्यूब न्यूक्लियस, सारा का सारा मटेरियल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एम्प्टी किया जाता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमी. साइफोनोगैमी हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं दे आर कैरीड टूवर्ड्स द ओव्यूल थ्रू अ जो पोलन ट्यूब होती है विच इज अ हॉलो ट्यूब. सो द मेल गैमेट्स आर कैरीड थ्रू दिस hollow pollen tube and because of that this process is called as siphonogamy. ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? साइफोनोगैमी का मीनिंग समझ में आ गया? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका. ठीक है. सो सायफोनोगॅमीचं मीनिंग कळलं काय आहे? सायफोन as the pollen grains travel through the hollow pollen tube towards the ovule and that is why this is called as siphonogamy. After this syngamy and triple fusion will happen. Now syngamy का मतलब क्या है? One of the male gamete will fertilize the egg cell. ठीक है? As the male gamete is also a haploid structure and egg cell is also a haploid structure, they will form a single celled diploid zygote, right? And this is called as syngamy. Okay. And triple fusion का meaning क्या है? Another remaining male gamete which is haploid and the polar nuclei which are already diploid, they fuse together to form a triploid or a triple nucleus, right? Which is called as the endosperm nucleus or primary endosperm nucleus. As this is a triploid condition, this will be called as triple fusion. Okay. ठीक है. सो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों टर्म्स ध्यान में आ गए क्या है? So syngamy and triple fusion are the 2 events of the sexual reproduction in angiospermic plants and ये दोनों के वजह से हम angiospermic plants में जो एक specialized character जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन
वो इस वजह से होता है. दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज द सेकेंड फर्टिलाइजेशन. Hence it is called as double fertilization. Syngamy is the fusion of the male gamete, one of the male gamete which is haploid with the haploid female egg cell or female gamete to produce a diploid zygote, whereas in triple fusion the second haploid male gamete fuses with the diploid secondary nucleus प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो द फ्यूजन ऑफ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द रिमेनिंग मेल गैमेट विल फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Now this will develop into a triploid endosperm. So endosperm जो होता है वो हमेशा triploid होता है, whereas जो zygote होता है वो diploid होता है. ठीक है. The male gamete develops into an embryo. So sorry, male gamete नहीं, the zygote will develop into an embryo. So हमको तो ये पता है कि fertilization के बाद जो zygote form होता है वो zygote mitotic divisions करता है and then an embryo is formed. Syngamy is a type of generative fertilization. Now, syngamy is a type of generative fertilization and triple fusion. 1 minute. And the triple fusion is a type of vegetative fertilization. Now, ये words कहीं पर सुने क्या? Generative and vegetative. जब मेल गैमेट फॉर्म हुए थे, मेल गैमेट फॉर्मेशन जब होता है एंड्रोशियम में या एंथर में, उस वक्त हमने ये दो नाम जो थे वो सुने थे. अभी एक बार फिर से थोड़ा सा ये करते हैं, इससे ध्यान में आएगा कि क्या होता है एक्चुअली, ये नाम उसको क्यों दिए गए. यहाँ पर हमने देखा था ना कि ये जो सेल होता है, पोलन ग्रेन होता है, वो डिवाइड होके दो सेल्स फॉर्म करेगा. वन विल बी अ वेजिटेटिव सेल एंड अदर विल बी अ जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल का काम होता है न्यूट्रिशन देना, ठीक है ना, एंड जनरेटिव सेल का काम होता है आगे जाके डिवाइड करके जो मेल गैमेट से वो, यानी इसका काम है डिवीजन का, इसका काम है न्यूट्रिशन का. वेजिटेटिव यानी न्यूट्रिशन, जनरेटिव यानी डिवीजन करना, डिवाइड होना, राइट. तो सेम मीनिंग यहाँ पर भी आता है. दैट इज व्हाई आई जस्ट शोड कि क्या था वो, उसका मीनिंग ध्यान में रखे तो नाम ध्यान में रखना बहुत इजी हो जाता है. सो जो पहली प्रोसेस होती है दैट इज सिनगैमी. इट इज अ काइंड ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. मतलब सिनगैमी के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट आगे जाके डिवाइड होता रहेगा एंड हमको एम्ब्रियो मिलेगा, राइट. जो ट्रिपल फ्यूजन है इट इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है, आगे जाके ये भी डिवाइड होगा एंड एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा. एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो को. दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव. वेजिटेटिव यानी फॉर न्यूट्रिशन, जनरेटिव यानी एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए. समझ में आ गया ये नाम क्यों है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन? ठीक है. हियर बोथ द मेल गैमेट पार्टिसिपेट एंड देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन. दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, बोथ द मेल गैमेट्स आर यूज्ड एंड दैट इज व्हाई दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई मतलब आपके जो रिटन एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, उसके लिए. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के फायदे क्या होते हैं प्लांट्स के लिए? दिस इज अ यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्म्स. तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली शोन इन एंजियोस्पर्म्स. इट ensures that the parent plant invests a seed with a food store only if the egg is fertilized. यानी प्लांट जो भी एग सेल है गाइनीशियम में जो फॉर्म होती है, दैट एग सेल इफ इट इज फर्टिलाइज्ड देन एंड देन ओनली वहां पर फूड स्टोरेज यानी एंडोस्पर्म फॉर्म होगा. सो एंडोस्पर्म इज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट फॉर द फोर्थ कमिंग एम्ब्रियो. समझ में आ रहा है? ऑलरेडी उसका फूड का स्टोरेज पहले से ही करके रख देते हैं इनसाइड द सीड.
इफ ओनली द एग सेल इज फर्टिलाइज्ड, एग सेल अगर फर्टिलाइज होता है तभी ये आगे की प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होती है। जो नेक्स्ट है, डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो which consequently develops into a new plant. So zygote जो फॉर्म होगा वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा एंड एम्ब्रियो के बाद हमको न्यू प्लांट मिलता है. So this is another use of this double fertilization. Next जो ट्रिप्लॉइड पेन, that is primary endosperm nucleus. This primary endosperm nucleus develops into a nutritive endosperm tissue. So this endosperm tissue is the nutrition for the embryo. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट है, it restores the diploid condition of by the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete. So हमको पता है प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, या प्लांट्स में जो भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं. ओनली गैमेट सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं. सो जो पहली जो सिनगैमी होती है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इनका जो फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, वो हमेशा डिप्लॉयड होता है. एज द मेल गैमेट इज ऑल्सो अ हैप्लॉयड एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो हैप्लॉयड. तो ये दोनों हैप्लॉयड गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जो नॉर्मल कंडीशन होती है, डिप्लॉयड कंडीशन, वो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर की जाती है. ठीक है, समझ में आ रहा है? इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉलीएम्ब्रियोनी. नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी का मीनिंग है, पॉली यानी मेनी, एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो फॉर्म होना. पॉलीएम्ब्रियोनी, मेनी एम्ब्रियो फॉर्मेशन एट द सेम टाइम. दिस इज अवॉइडेड. क्यों अवॉइड होता है? क्योंकि यहाँ पर एक तो फीमेल एग सेल जो है वो सिंगल ही होता है, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली सिंगल जाइगोट इज फॉर्म, एक ही जाइगोट फॉर्म होगा, एक ही एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एंड इन दिस वे पॉलीएम्ब्रियोनी इज अवॉइडेड. समझ में आ रहा है? Yes. Though there are two male gametes, but the egg cell is only single cell or single female gamete. That is why only single zygote is formed, and from that zygote single embryo is formed, and this avoids the condition which is called as polyembryony. Okay. यहाँ तक क्लियर है? Yes. अभी कोई नेटवर्क का इशू नहीं है ना? No, ma'am. एक 10-15 मिनट के लिए. हाँ. ठीक है. नाउ सबसे पहले अभी अब तक हमने क्या देखा? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया. डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हो गया है एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है. इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? नाउ सी, हमने सबसे पहले ये भी देखा था ना कि ये जो भी फर्टिलाइजेशन का वगैरह प्रोसेस है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, राइट? तो प्री फर्टिलाइजेशन में आता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म होना. उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन. कैसे होता है? वो आएगा फर्टिलाइजेशन के अंडर. एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो अभी यहाँ से वो शुरू होगा. नाउ मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, दिस कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो सबसे पहले जो है एंडोस्पर्म डेवलप होता है. जब एंडोस्पर्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा तभी एम्ब्रियो में, यानी तभी जो जाइगोट होता है वो भी डिवाइड होना शुरू, यानी उसमें भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. जब तक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन शुरू नहीं होती तब तक जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन शुरू नहीं होते हैं. यानी ओनली फर्टिलाइजेशन तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद सबसे पहले एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है, एंड उसके बाद ही फिर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन शुरू होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू होगा. समझ में आ रहा है? अगर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट होता तब तक जाइगोट डिवाइड होना नहीं शुरू होता है. ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है. Yes, ma'am. So the triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form a nutritive tissue which is called as endosperm. So meiosis की प्रोसेस सिर्फ एंड सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए होती है. बाकी कहीं पर भी meiosis यूज नहीं होता है, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में.
बाकी सारे डिविजन जो होते हैं वो हमेशा माइटोसिस से ही होते हैं. सो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद this nucleus which is in triploid condition it will divide mitotically to form endosperm. यहाँ तक क्लियर है? Yes. Now in post fertilization changes within the ovule the embryo and endosperm are seen to develop simultaneously. मतलब this comes under post fertilization changes. Now embryo will start developing after the starting of the development of endosperm. Endosperm फॉर्म होना जब तक शुरू नहीं होता है तब तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू नहीं होता है. ठीक है. Now the other cells of embryo sac disorganized sooner or later. So embryo sac मतलब जो fertilization के बाद जो भी embryo sac rupture हो जाती है उसके जो भी cells होते हैं. मेरा एको आ रहा है. वो मैं. आवाज क्लियर है लेकिन. Yes, ma'am. तो जो भी रप्चर्ड एम्ब्रियो सैक है उसके जो सेल्स है वो सारे के सारे सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर्स द सेल डिवीजन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. यानी जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिविजन करना स्टार्ट कर देगा and because of this endosperm will be formed. समझ में आ रहा है? Now ये जो प्रोसेस होती है formation of endosperm from the triploid endosperm nucleus, ये तीन डिफरेंट तरीके से होती है. एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा होता है सेल्युलर डिवीजन एंड तीसरा होता है हेलोबियल डिवीजन. नाउ हेलोबियल डिवीजन जो होता है ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है दैट इज हेलोबियल्स. ये जो ऑर्डर है प्लांट्स में यानी इस ऑर्डर में जो जो प्लांट्स इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज सीन. बाकी के इसमें आइदर न्यूक्लियर और सेल्युलर दिखाई देता है. कुछ समझ में आ रहा है? मैम थोड़ा थोड़ा. एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होगा आगे जाके, डिवाइड एंड रीडिवाइड होता जाएगा एंड इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म. इतना पॉइंट क्लियर है? नाउ ये जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम दिस न्यूक्लियस ये तीन डिफरेंट टाइप से होती है. एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा होता है सेल्युलर और तीसरा होता है हेलोबियल. जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसमें क्या होता है बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन में ये सबसे ज्यादा कॉमन डिवीजन है, टाइप ऑफ डिवीजन है. इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इट विल रीडिवाइड माइटोटिकली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सी दिस डायग्राम. ये जो डायग्राम है ना, अगर इफ दिस इज द एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो ये जो न्यूक्लियस है वो रीडिवाइड होता जाता है. बट डिवीजन के बाद ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा. समझ में आ रहा है? सो द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल रीडिवाइड एंड फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई बट दे डोंट हैव द सेल वॉल्स. समझ में आ रहा है? सेल वॉल उसमें एब्सेंट होता है. सेल वॉल उस वक्त फॉर्म नहीं होता है. विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मतलब वो फ्री न्यूक्लियाई होंगे. साइटोप्लाज्म में तैरते हुए बहुत सारे मेनी न्यूक्लियाई इस तरीके की कंडीशन होगी. उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स. यानी यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है एक सेंट्रली छोटा वैक्यूल यानी ओवल शेप्ड एयरी स्पेस तैयार होता है एंड वो बड़ा बड़ा होता जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूल. वैक्यूल का मीनिंग तो पता है ना? जिसमें वैक्यूम होता है दैट इज अ वैक्यूल. ठीक है, तो सेंट्रल प्लेस में एक बड़ा सा वैक्यूल अपीयर हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? So the vacuole appears in the center of the cell pushing the nuclei towards the periphery and
ये प्रोसेस होने के बाद ये जो न्यूक्लियाई है उनमें फिर सेल वॉल डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड देन दिस appears to be like this is the न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है ये? यस फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? मैम, एक बार पढ़ा तो। ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, दिस इज द जाइगोट। यहाँ पर जो ऊस्पोरिया जाइगोट नाम दिया है ना, एक बड़ा सा डॉट करके एक यहाँ पर दिखाया है, यस ये जो है दिस इज द जाइगोट फॉर्म। ठीक है ना? इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो चुका है बाकी का। वो जब डिवाइड होगा तो ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगी, वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। नहीं है। ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? A centrally placed large vacuole will appear। यहाँ पर अगेन एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है हमको। जाइगोट से एम्ब्रियो होना, फॉर्म होना शुरू हो चुका है, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होना जब शुरू हो जाएगा तभी यहाँ पर ये जाइगोट डिवाइड होगा एंड हमको एम्ब्रियो मिलेगा। दैट इज वाई सेकेंड फिगर में इन्होंने यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा है, यहाँ पर जाइगोट नहीं लिखा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्यों यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा है, यहाँ पर जाइगोट क्यों लिखा है? यस मैम। क्योंकि ये डिवीजन शुरू हो चुका है, दैट इज वाई ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ होता है ना, छोटे बच्चे भी अगर एक ने कुछ किया तो दूसरा भी करना शुरू कर देता है, कॉपी हाँ। करना शुरू कर देता है। तो सेम होता है यहाँ पर। ये जो जाइगोट है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है उसकी कॉपी करना शुरू हो जाता है। जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक ये भी चुपचाप बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस हैपेंस। दैट इज वाई यहाँ पर जाइगोट ना लिखकर यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा है, क्योंकि जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो चुका है, न भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। तो न्यूक्लियर डिवीजन में सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेंट्रली एक लार्ज वैक्यूल अपीयर होना शुरू हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यूक्लियाई आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट? एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं, दे विल डेवलप द सेल वॉल्स नाउ, and the endosperm will appear like this। ठीक है? This is the first kind of division, that is the nuclear division। समझ में आ गया nuclear division क्या है? यस The vacuole appears in the center, pushing the nuclei towards the periphery. Later the walls develop between the nuclei, hence the multicellular endosperm is formed। Now in several cases the cell wall formation remains incomplete। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, यहाँ पर हर एक सेल को हर एक न्यूक्लियस को सेल वॉल डेवलप हो चुका है। मेजोरिटी में क्या होता है, सेल वॉल हर एक को नहीं डेवलप होती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। ठीक है? दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कुछ कुछ इसमें इनकम्प्लीट रहता है, किसी किसी इसमें कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल बीट, सनफ्लावर, कोकोनट, इनमें इनकम्प्लीट रहता है। कोकोनट हैज मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म in the outer part and the free nuclear as well as vacuolated endosperm in the center। हम जब कोकोनट को फोड़ते हैं तो दिखाई देगा ना, अंदर लिक्विड होता है ना? वैक्यूल होता है या वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम के अंदर लिक्विड होता है, एंड देन हार्ड पार्ट होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट सेल न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है? समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट ये जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी, तो वो जो पार्ट होगा वो इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगा। दैट इज वाई कोकोनट में हमको वाटर दिखाई देता है। अगर कभी कोकोनट का मतलब घर में कोकोनट है एंड ऐसे हो जाता है कि उसका अपने आप ही मतलब जर्मिनेशन होके उसको लीव्स आना शुरू हो जाता है, होता है, कभी देखा होगा, होता है ना? हाँ, तो उस वक्त इफ एट ऑल अगर उस कोकोनट को हम फोड़ते हैं जिसमें जर्मिनेशन होके लीव्स आना शुरू हो चुका है, तो अंदर जो पानी होता है ना वो पूरा का पूरा यूज किया होता है, क्योंकि दैट इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। तो वो जो एम्ब्रियो ग्रो करता है, इसका मतलब क्या है? लीव्स आना हमको शुरू दिखाई देता है विदाउट सॉइल भी, रूट
लीव्स हाँ दिखाई देने लगते हैं, तो फिर वहां उसको फूड कहाँ से मिलेगा? हमने तो ना तो सॉइल में उसको डाला ये है, ना कोई फर्टिलाइजर, कुछ भी तो नहीं दिया है। फिर कहाँ से आता है ये? तो ये जो न्यूट्रिशन है ये एंडोस्पर्म से वो एब्सॉर्ब करते हैं। दैट इज वाई अगर उस वक्त हम उस कोकोनट को फोड़ते हैं तब उसमें हमको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पानी होता है दैट इज द एंडोस्पर्म, दैट इज द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके वो पूरा सूखा का सूखा निकल जाता है। ठीक है। सो यस दिस इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। आगे के जो दो टाइप है, सेल्यूलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप, एंड आगे का जो पार्ट है वो कल के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। मैम ओके, चलो बाय बाय। बाय।